گفتگو کافی دلچسپ مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہاں سے میری گفتگو کا پیس لگنا چاہیے، سائکا مائلر نے کہا۔ علی کے بارے میں تو آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے مس ہارٹو، لیکن مناسب یہی ہوگا کہ پہلے آپ مجھے وہ کام بتائیں جس کے لیے آپ نے یہ سفر کیا ہے۔ تارینا ہارٹو بولی، ہاں میں بھی یہی محسوس کر رہی ہوں۔ آپ کو علم ہے کہ مجھے میرے ملک کے ہوم منسٹر نے ذاتی طور پر یہاں بھیجا ہے؟ سائکا بولی، ہاں میں واقف ہوں۔ تارینا ہارٹو نے کہا، کچھ عرصے قبل ہم نے ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت تخفیف اسلحے کی ایک کارروائی کی تھی اور کیمیاوی ہتھیاروں اور ان کے فارمولوں کے ساتھ آبدوز روانہ کی تھی تاکہ اسے سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ آبدوز حائل جوشیو نامی ایک دہشت گرد نے اغوا کر لی اور اس کے لیے سودے بازی کرنے لگا۔ اسرائیلی حکومت سے اس کے معاملات طے ہو گئے، لیکن ہماری درخواست پر علی یارخان نے اسرائیل کے تمام منصوبے ناکام بنا دیے۔ حائل جوشیو کو ہلاک کر دیا اور آبدوز ہمارے حوالے کر دی، جسے تباہ کر دیا گیا۔ سائکا متحیر آواز میں بولی، علی یارخان۔ تارینا نے کہا، ہاں وہ یہی علی ہیں۔ ہم انہیں احترام سے اپنے ملک میں لے آئے، لیکن ایک امریکی یہودی نے گرین پول نامی دہشت گرد ادارے سے مل کر ان کے خلاف سازش کی اور حالات ایسے بگڑ گئے کہ ہمارے حکام بھی ان سے برگشتہ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی سازش کو پختہ کرنے اور علی کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا کرنے کی غرض سے علی کی ایک ساتھی کو اغوا کر لیا گیا۔ ہوم منسٹر مسٹر آئنشلائر ذاتی طور پر علی سے بہت متاثر تھے۔ وہ مقدور بھر اس سلسلے میں کوشش کرتے رہے۔ ایک اور ملک سے خفیہ معاہدے کے تحت کچھ خاص اسلحہ اسرائیل کو سپلائی کیا جا رہا تھا، جس کی ترسیل گرین پول کے ذریعے ہو رہی تھی۔ اس لیے مسٹر آئنشلائر نے مسٹر علی سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں بھی کام کریں اور اسلحے سے متعلق فلمیں حاصل کر لیں، تاکہ ایک طرف تو عربوں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا جائے اور دوسری طرف گرین پول کو بلیک میل کر کے دھمکی دی جائے کہ علی کی ساتھی اگر واپس نہ ہوئی تو عربوں کو گرین پول کے بارے میں تفصیل بتا دی جائے گی۔ اس طرح عرب دنیا میں گرین پول کے مفادات پر کاری ضرب لگے گی اور کوئی عرب ملک اس سے کام نہیں لے گا۔ اس ادارے کا کام دنیا کے ہر ملک کے لیے سب کچھ کرنا ہے اور اس طرح سے دولت کمانا ہے۔ اگر عرب دنیا اس بات سے واقف ہو جاتی تو گرین پول بڑے نقصان سے دوچار ہوتی۔ علی اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے، لیکن کسی طرح گرین پول کو اس کی بھنک مل گئی۔ چنانچہ مسٹر آئنشلائر کی بیوی اور ان کے 9 سالہ اکلوتے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا اور مجرموں نے دھمکی دی کہ اسلحے سے متعلق فلم اور حائل جوشیو کے اثاثوں کی فائل گرین پول کے حوالے کر دی جائے، ورنہ ان دونوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ علی واپس آئے تو موجودہ حالات کے تحت ان سے بے اعتنائی برتی گئی اور انہوں نے جذباتی ہو کر وہ فلم جلا دی، جس کی وجہ سے مزید مشکلات پیدا ہو گئیں۔ میں نے اپنی موت سے فائدہ اٹھایا اور خفیہ طور پر کام کرنے لگی۔ مسٹر آئنشلائر نے مسٹر علی کے ساتھ سخت سلوک کرتے ہوئے انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا اور ایک ہوٹل میں قیام کی اجازت دی جہاں سے انہیں ملک بدر کیا جانے والا تھا۔ مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ رات کے آخری حصے میں مسٹر علی سے مل کر انہیں صورتحال بتا دی جائے تاکہ وہ مسٹر شلائر کی طرف سے دل صاف کر لیں، لیکن علی ایک ویٹر کو ہلاک کر کے وہاں سے نکل گئے۔ اس طرح ہم انہیں آگاہ بھی نہ کر سکے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ گرین پول نے یہودیوں سے ساز باز کر رکھی تھی۔ اسلحے کی سپلائی ابھی روک دی گئی ہے اور فوری طور پر کوئی پروگرام نہیں ہے۔ مسٹر شلائر چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے ہم گرین پول کی مطلوبہ اشیاء اس تک پہنچائیں۔ انہوں نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ اسلحے کی فلم ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ایک نقلی فلم بنائی گئی ہے۔ البتہ جوشیو کے اثاثوں کی فائل اصلی ہے جو مسٹر شلائر نے خفیہ طور پر ریکارڈ ڈپارٹمنٹ سے حاصل کی ہے۔ اصل فائل پیش کرنا ضروری ہے اور اس کا ریکارڈ ڈپارٹمنٹ میں واپس جانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ مسٹر آئنشلائر چاہتے ہیں کہ فائل گرین پول کو دے دی جائے اور ان کے بیوی اور بچوں کو رہا کروانے کے ساتھ ہی فائل بھی واپس حاصل کر لی جائے، اور اس اہم کام کے لیے مس سائکا آپ کو زحمت دی جا رہی ہے۔ اب آپ خود حالات کا اندازہ لگا سکتی ہیں۔ میں دلچسپی سے یہ پوری کہانی سن رہا تھا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ آئنشلائر بیچارہ مجبور تھا۔ اگر میں ہوٹل سے فرار نہ ہوتا تو اس وقت حقیقت مجھے معلوم ہو جاتی، لیکن میں بھی مجبور تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہی ہوتا، یعنی ہارڈو پھر مجھ پر مسلط ہوتی اور میں یہ کسی طور پسند نہ کرتا۔ بے شک آئنشلائر اپنے طور پر مظلوم تھا، مجبور تھا، لیکن یہ میری ذمہ داری تو نہیں تھی۔ اسے کچھ تو کرنا ہی تھا اور مجھے اپنے بچاؤ کا بندوبست کرنا تھا۔ سائکا کی البتہ سٹی گم ہو گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے آثار نظر آ رہے تھے۔ تارینا ہارڈو خاموش ہو گئی تھی۔ یہ خاموشی دیر تک ماحول پر مسلط رہی۔ میں سائکا کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ بس گنگ بیٹھی تھی۔ ماحول کے سکوت کو بلاخر تارینا ہارڈو نے ہی توڑا۔
बोली, अब आपको फैसला करना है मिस साइका कि आप मिस्टर श्लायर की क्या मदद कर सकती हैं। साइका माइलर ने मेरी तरफ देखा और फिर तवील सांस लेकर बोली, अभी तो फैसला ये करना है मिस तारीना हार्डो कि मेरी अपनी पोजीशन क्या रह गई है। मैं बहुत डींगे मारती आई थी अली के सामने, लेकिन जो शख्सियत अपने अंदर इतने कमाल रखती हो उसके सामने मेरी भला क्या हैसियत रह जाती है। और अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे लिए अली के दिल में कितने कहे मचल रहे होंगे, क्या क्या न सोचा होगा इन्होंने मेरे बारे में। एक हकीर सी शय हूँ इनके सामने तो मैं, मेरा गिरोह भला क्या हैसियत रखता है। अली यार खान तो बजाते खुद एक गिरोह है। हायल जोशियों से मैं भी नावाकिफ नहीं हूँ। आप दोस्त केस मेरे भी इल्म में हैं। तफसीलात मैं नहीं जानती कि किस तरह ये मसला हल हुआ था, लेकिन अली यार खान कसूर मेरा भी नहीं है। कुछ लोग अपने आप को छुपाने में कमाल रखते हैं और दूसरों की हिमाकत से लुत्फानंदोज होते हैं। अजीब सी बात नहीं है मिस हार्डो, हम लोग मुखलिसाना तौर पर एक दूसरे के साथ थे, लेकिन अली ने अपने बारे में मुझे कभी तफसील नहीं बताई। खैर, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। ताहम अब जबकि अली की शख्सियत खुलकर मेरे सामने आ गई है तो मैं यही समझती हूँ कि अब मेरी अपनी शख्सियत मांद पड़ गई है, लिहाजा मैं आपके सिलसिले में क्या कर सकूंगी। अलबत्ता ये जरूर है कि मैं खुलूस दिल से मिस्टर आइन श्लायर की हमदर्द हूँ और इस बात पर इंतहाई दुख का इजहार करती हूँ कि उनकी बीवी और उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है। अगर आप चाहें तो मैं अली के साथ एक मातहत की हैसियत से काम कर सकती हूँ, मुझे इस पर जरा भी एतराज नहीं होगा। तारीना हार्डो के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने आहिस्ता से कहा, मिस साइका, अभी तो अली की जिंदगी का सिर्फ एक मामूली सा अक्स आपके सामने आया है। खुशबख्ती से मैंने अली के बारे में खासी मालूमात हासिल की हैं और जितना कुछ मैं जानती हूँ अली के बारे में वो सब जानकर आप मजीद हैरान होंगी। इस वक्त मेरे ख्याल में ये मुनासिब भी होगा कि मैं अली यार खान का कुछ तारुफ अपनी मालूमात की बिना पर आपसे करा दूं, ताकि आपको अली से अपने रवाबित में कोई दुश्वारी पेश ना आए। इतना कहकर तारीना ने मेरी तरफ देखा और मैंने खामोशी से सर झुका लिया। तब वो दोबारा साइका से मुखातिब हुई। बोली, गोइटे हिल का नाम सुना है आपने? साइका माइलर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। तारीना बोली, गोइटे हिल के फौजी इनकलाब की पुश्त पर अली का हाथ था। वहाँ ग्रीन पोल और यहूदी लॉबी की साजिशों को खत्म करने का सेहरा भी अली के सर है। और फिर जबकि ये वहाँ एक बड़ी हैसियत इख्तियार कर चुके थे, सारा ही निज़ाम हुकूमत दरहम बरहम करके रख दिया था इन्होंने, और फिर छोड़ छाड़ कर चले आए। फिर गुमनामी की हालत में सफ़र करते हुए मुझ तक पहुँचे तो मैंने एक आम इंसान की हैसियत से इनका इस्तकबाल किया। लेकिन जब इनके जौहर खुले और मैंने अपने तौर पर इनके बारे में मालूमात हासिल की तो मैं शिश्तर रह गई। बिलाखिर इन्हें हायल जोशियों की मुहिम सौंपी गई। तारीना ने तफसील से तमाम वाक़यात सुनाना शुरू कर दिए और साइका मुतहय्यर अंदाज में सुन रही थी। तारीना बोली, बर्कले यूनिवर्सिटी का एक पाकिस्तानी तालिब इल्म अली यार खान सिर्फ इसलिए यहूदियों के खिलाफ हुआ कि उन्होंने एब्रन हॉल में एक मीटिंग के दौरान मुसलमानों के खिलाफ लाफो गुजाफ की थी। एब्रन हॉल जैसी अहम जगह जो कि यहूदियों का गढ़ है, इस नौजवान ने खड़े होकर मुसलमानों की हिमायत की और इसी की पादाश में यहूदी इसके खिलाफ हो गए। इसकी एक पाकिस्तानी साथी लड़की को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद इसने अपनी राह में मज़ाहिम यहूदियों को कत्ल करने के बाद वहां से फरार इख्तियार किया और पता नहीं कहां कहां होता हुआ तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन में शामिल हो गया। यहाँ इसके कारनामों ने यहूदियों के दिल दहला दिए। ये वही अली यार खान इस वक्त हमारे सामने हैं, मिस साइका माइलर। साइका एकदम खड़ी हो गई। उसकी आंखों में शदीद हैरत के आसार थे। फिर उसने दोनों हाथों से सर पकड़ा और धम से सोफे पर बैठ गई। तारीना हार्डो मुस्कुरा रही थी। मैं सोफे की पुश्त से गर्दन टिकाए अपनी ही सोचों में गुम था। आइन श्लायर की जात से मुझे वाकई हमदर्दी महसूस हो रही थी। चंद लम्हे के बाद साइका माइलर ने गर्दन उठाई और मेरी तरफ देखती हुई बोली, अली, मैं आपके बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे साथियों में चंद शामी बाशिंदे हैं, वो आपसे अकीदत रखते हैं, आपके नाम की पूजा करते हैं और मैं खुद को आपके सामने बहुत हकीर महसूस कर रही हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप दोनों खवातीन मुझे घिसे जाएंगी या कुछ काम की बातें भी होंगी? साइका माइलर ने कहा, नहीं अली, आपने सच बात यह है कि मुझे मेरी औकात याद दिला दी। उसकी आवाज में अफसरदगी थी। मैंने कहा, अरे ये अचानक तुमसे आप और फिर ये लहजा। डियर, तुम बहरहाल मेरी दोस्त हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं तुमसे फौरन ही अपने कारनामे बयान करना शुरू कर देता? कैसा लगता? अजीब सा महसूस ना होता? आप ही फैसला करें मिस तारीना हार्डो, आपका क्या ख्याल है? हम लोग अपने छोटे छोटे कारनामों को बढ़ा चढ़ा कर बयान करें तो क्या ये हमारी शख्सियत को ज़ेब देता है? साइका माइलर ने कहा, और मैं जैसे बहुत ही हल्की लड़की हूँ, क्यों यही कहना चाहते हैं ना आप? मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। कहा, वाह, खवातीन के लड़ने का यही अंदाज होता है। चलो भाई, हमने हथियार डाल दिए। हम किसी खूबसूरत लड़की से नहीं लड़ सकते।
साइका माइलर चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर बोली, ठीक है, इस मौजू पर तुमसे तफसीली गुफ्तगू होगी अली। मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि मेरी शख्सियत बहुत बुरी तरह मजरूह हुई है। मैं अब तक अपने आप को बहुत बरतर समझती रही हूँ, लेकिन तुम कम से कम मुझे बता तो देते ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे शायान शान एहतराम देती। मैंने कहा, तुमने मुझे इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम दिया है कि उसके बाद किसी शिकायत की गुंजाइश नहीं रहती। जहाँ तक तुम्हारी शख्सियत के मजरूह होने की बात है तो तुम किसी तौर मुझसे कमतर नहीं हो। बिला वजह की बातें जहन में न रखो। मुझे अब तारीना हार्डो से गुफ्तगू करके आइंदा के मामलात पर गौर करना है। तारीना बोली, मैं भी यही मशवरा देती हूँ मिस माइलर, आप आइन श्लायर के केस को अपने हाथ में ले लें। अली आपके साथ है, आप लोग आपस में जो भी मशवरा करें, हम उस सिलसिले को आप ही के सुपुर्द करना चाहते हैं। साइका माइलर बोली, क्यों अली, क्या ख्याल है? अब तो बात बहुत आगे निकल गई है। मैं इनकार नहीं कर सकती क्योंकि मिस्टर आइन श्लायर ने बहुत से मामलात में मेरी दरपर्दा मदद की है। कुछ एहसानात हैं उनके मुझ पर, मैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती, और ख़ास तौर से ऐसी शक्ल में जब उनकी बीवी और बेटा दहशत पसंदों के कब्जे में हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी मदद करें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है चीफ, और साइका मुझे घूरने लगी। बोली, देखो अली, बाज आ जाओ, झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा, तौबा तौबा, मेरी ये मजाल कहाँ। फिर बोली कि इसकी तमाम नौयत तुम समझ चुके हो अली, चुनाचे मिस तारीना हार्डो से इस मौजू पर गुफ्तगू करो। मैंने पूछा, मैं? साइका बोली, हाँ तुम। मैंने कहा, क्यों भाई, मैं क्यों? साइका बोली, दरअसल तुम खुद भी इस तमाम सिलसिले की एक कड़ी हो अली, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जहन में ये तमाम हालात वाक़यात मालूम करके जो सवालात पैदा हुए हों उनके बारे में तारीना हार्डो से गुफ्तगू करो। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर इजाज़त? साइका ने कहा, हाँ, और मुस्कुरा दी। मैंने कहा, पहला सवाल मिस हार्डो। वो मेरी तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हो गई, बोली, जी जी। मैंने कहा, क्या सनमैन आइन श्लायर का आदमी नहीं है? तारीना बोली, 100%, लेकिन वो सिर्फ किराए का टट्टू है, ज़ेर ज़मीन दुनिया का बादशाह, जहाँ से दौलत मिल जाए वहाँ काम शुरू कर देता है। आइन श्लायर की वजह से उसे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं, मगर अपनी अक़रबी फितरत की वजह से वो मजबूर है। डंक मारने का जहाँ भी मौका मिलता है मार देता है कि किसी भी जगह से अगर उसे ज़्यादा दौलत मिल जाए तो वो ऐसा काम कर लेता है जिस पर मिस्टर आइन श्लायर को भी एतराज़ ना हो और वो भी अपना काम कर जाए। इस सिलसिले में आइन श्लायर को भी मालूम था, चुनाचे तुम्हारे मामले में अली, उन्होंने सनमैन को उसी तरह ट्रीट किया जैसे अब वो तुमसे बरगश्ता हूँ। इससे मुराद ये थी कि अगर ऑलिव हार्वर्ड या ग्रीन पोल ने सनमैन से राब्ता कायम करके उसे अपने जाल में फांसा हो तो वो उन लोगों को यही इत्तला दे कि मिस्टर आइन श्लायर मुआहदे की पाबंदी कर रहे हैं और अब मिस्टर अली के साथ उनका रवैया बेहतर नहीं है। मैंने कहा, अगर सनमैन ऐसा ही खुद गर्ज आदमी है तो फिर ये भी सोचा जा सकता है कि फिल्म के चल जाने की इत्तला भी ग्रीन पोल को पहुंच चुकी होगी। तारीना बोली, मुमकिन है ऐसा हुआ हो। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, फाइल तो वो असली ही है जो तुम्हें ग्रीन पोल को देना है? तारीना बोली, हाँ। मैंने पूछा, फिल्म भी उनके हवाले करना है? वो बोली, हाँ, लेकिन जैसा कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वो फिल्म असली नहीं है। मैंने कहा, अगर सनमैन के जरिए ग्रीन पोल को ये इत्तला मिल चुकी है कि वो फिल्म अली यार खान ने जला दी थी, तो क्या उस फिल्म को देखकर ग्रीन पोल के अरकान हैरान नहीं होंगे? क्या उसके बाद वो ये गौर नहीं करने लगेंगे कि मुमकिन है वो फाइल जो उन तक पहुंचाई गई है नकली हो? तारीना हार्डो किसी गहरी सोच में डूब गई। फिर उसने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ये तो है। मैंने कहा, क्यों ना फिल्म के मसले को गोल ही रखा जाए और ये इजहार किया जाए कि फिल्म जला दी गई थी। तारीना ने कहा, अली, अब तमाम सूरत हाल तुम्हारे सामने आ चुकी है, मिस माइलर भी मौजूद हैं, जैसा तुम दोनों फैसला करो। साइका माइलर ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले लेकिन फिर बंद कर लिए। मैंने उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखते हुए कहा, क्यों साइका, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा, अली, क्या मेरा बोलना जरूरी है? मैंने कहा, हाँ। मैं मिस तारीना हार्डो से इंतहाई माजरत खां हूँ। इत्तेफाक के तौर पर मैं मिस साइका माइलर के साथ यहाँ आ गया हूँ। इन्होंने खुद ही इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं इनके साथ चलूं, वरना शायद मैं यहाँ ना आता। मिस्टर आइन श्लायर से रुखसत होने के बाद मेरे जहन में ये बात नहीं थी कि यहाँ पहुंचकर मैं मिस माइलर के गिरोह में शामिल हो जाऊंगा, और ये भी सिर्फ इत्तेफाक है कि आपसे मेरी शिनासाई निकल आई। अब बेहतर यही है कि आप इस सिलसिले में जो भी गुफ्तगू करना चाहती हैं साइका माइलर ही से करें। साइका ने अगर चाहा तो मैं इस मामले में बोलूंगा, वरना ला ताल्लुक रहूंगा, और बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ मौजूद भी न रहूं। मैंने सोफे से उठने की कोशिश की तो साइका माइलर मुस्तरिबाना अंदाज में खड़ी हो गई। बोली, अरे अली, तुम बुरा मान गए, मेरा ये मकसद तो नहीं था, बस मैं तुम्हें खुद से बरतर समझते हुए ये तमाम बातें कह रही थी। मैंने कहा, उसके बावजूद मिस माइलर, केस आपका है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मुझे आइन श्लायर की बीवी और उसके बच्चों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उन तमाम लोगों से कता ताल्लुक कर चुका हूँ। साइका मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे की जिंदगी अचानक ही वापस आ गई थी।
फिर उसने तारीना हार्डो से कहा, सॉरी मिस हार्डो, ठीक ही तो है, वाकई आप मुझसे मिलने आई थीं। इन तमाम मामलात के सिलसिले में आपसे मुझे गुफ्तगू करना चाहिए। अली से मुतारिफ करवाने का बेहद शुक्रिया। मेरा ख्याल है आप फाइल मुझे दे दें और मैं इस सिलसिले में हर मुमकिन जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ। तारीना हार्डो के चेहरे पर अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। बदले हुए रंग थे उसकी आंखों के, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है मिस माइलर, मैं ये फाइल आपके हवाले करती हूँ। मेरी जिम्मेदारी इसके बाद ख़त्म हो जाती है। हाँ, अलबत्ता आपको कभी हमारी ज़रूरत पेश आए तो आप हमसे राब्ता कायम कर सकती हैं। अलबत्ता इतना ख्याल रखिएगा कि मिस्टर आइंशलायर के बेटे और बीवी की ज़िंदगी अब आपके हाथ में है। ओके अली, अगर हालात कुछ बेहतर हुए और हम तुम्हारे लिए कुछ कर सके तो सुरखरू होकर तुमसे मुलाकात करेंगे। तारीना हार्डो के लहजे में अजीब सी अफसुर्दगी थी। मैंने चौंक कर उसे देखा, फिर कहा, मैं नहीं समझा तारीना। तारीना बोली, बस यूं ही, कोई खास बात नहीं। ये कहकर वो अपनी जगह से उठकर एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने अलमारी से एक सुर्ख रंग की फाइल निकाली, उसे खोला और फाइल के कागजात साइका माइलर को चेक कराने लगी। मैंने उन कागजात को देखने की कोशिश नहीं की थी। साइका चंद लम्हे उन कागजात को देखती रही, फिर उसने फाइल अपने कब्जे में लेते हुए कहा, आप इत्मीनान रखें, आपको ये फाइल मिस्टर आइंशलायर की बीवी और उनके बच्चे के साथ ही वापस कर दी जाएगी। आप हमारी कामयाबी के लिए दुआ गो रहें। तारीना बोली, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप ये बताएं कि आप क्या पीना पसंद करेंगे। एक मशरूब पीने के बाद साइका माइलर ने उठते हुए कहा, अब हमें इजाजत दीजिए। हाँ अली, अगर आप तारीना हार्डो के पास रुकना चाहें तो मुझे जरा भी एतराज नहीं होगा, बल्कि मेरा अपना ख्याल है कि आप यहाँ कयाम करें, बशर्ते कि मिस हार्डो पसंद करें। तारीना हार्डो ने मुतशक्किराना निगाहों से साइका की तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ साइका। साइका ने कहा, ओके अली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। मैंने वहां ठहरने का इरादा कर लिया था। साइका को रुखसत करने के बाद हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। मैंने तारीना हार्डो से कहा, यकीन करो तारीना, तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बेपनाह खुशी महसूस हो रही है। मैं जब भी उस हौलनाक वाक़े को याद करता था, मेरे रगो पै में सनसनी दौड़ जाती थी और मैं ये महसूस करता था कि काश ऐसा न हुआ होता। तारीना बोली, जरा ये तो बताओ अली कि उस औरत को कत्ल करने की जरूरत क्यों पेश आ गई। मैंने कहा, बस ये सिर्फ इत्तेफाक था तारीना कि वो मेरी एक ज़रबे शदीद का शिकार हो गई। तारीना हार्डो ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर वो मैं ही होती तो? मैंने कहा ना, इसके लिए शायद मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता। वो बोली, शुक्रिया, तुम्हारे ये अल्फाज मेरे लिए बेहद कीमती हैं अली, मगर हमारी अपनी जहनी कैफियत के बारे में तुम क्या समझते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? तहजीब मैल्कम एक्स को हासिल न करके क्या हम खुश हैं? मैंने कहा, तहजीब के बारे में बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर मर चुकी है तो उसकी मग़फ़िरत हो और अगर जिंदा है तो हर तरह के अजाब से महफूज रहे। तारीना हार्डो ने पूछा, तुम उसके हुसूल से मायूस हो चुके हो? मैंने कहा, हाँ तकरीबन। तारीना बोली, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि वो ग्रीन पोल के कब्जे ही में है? मैंने कहा, हाँ इसके इम्कानात हो सकते हैं। मैं तुम्हें ओलिव हार्वर्ड के बारे में बता चुका हूँ। उसका ताल्लुक अमेरिकन CIA से जरूर है, लेकिन वो जो कुछ कर रहा है उसकी जिम्मेदार हुकूमत अमेरिका कतई नहीं है। वो सिर्फ ज़ाती बुनियादों पर काम करता रहा है। उस वक्त जब कैलिफोर्निया में मैं उसके मद्दे मुकाबिल आया था और हमारे दरमियान कुछ हादसात के तहत मजीद मुलाकातें हुई, तो उसने यही कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें कत्ल कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह कत्ल नहीं करूँगा। जो कुछ तुमने किया है उसका बदला उतना ही भरपूर होना चाहिए। इस सिलसिले में वो मेरे वतन को भी मुलव्विस करना चाहता है, वरना हकीकत यह है कि या तो वो मेरे हाथों मारा गया होता या मैं उसके हाथों ख़त्म हो गया होता। मेरे और उसके दरमियान जितनी तवील चपकलिश चल रही है, शायद तुम इसका तसव्वुर भी न कर सको तारीना। तारीना बोली, मैं जानती हूँ वो बेहद खतरनाक आदमी है, और एक बात मैं भी तुम्हें बताऊं, मेरे मुल्क में उसकी मौजूदगी के बहुत से निशानात मिले हैं। मैं ज़ाती तौर पर भी इस दौरान रूपोश रहकर जो कुछ करती रही हूँ उसके तहत मैं तुम्हें ये बात पूरे वसूख से बता रही हूँ कि हार्वर्ड उस वक्त वहीं था जब हम इन सारे मामलात को तरतीब दे रहे थे। हायल जोशियों के असासों के बारे में तो मुझे इल्म नहीं हो सका, लेकिन मैं जानती हूँ ग्रीन पोल को तुम्हारी जानिब मुतवज्जे करने वाला वही शख्स था। यकीनी बात है कि तहजीब मैल्कम एक्स को ग्रीन पोल ने अगवा किया। अब ये नहीं मालूम कि उसने उसके साथ क्या सलूक किया, कोई निशान ही नहीं मिल सका। लेकिन मुझे यूं लगता है अली जैसे तहजीब अब भी तुम्हारे जहन में जिंदा है। मैंने कहा, हाँ वो मेरे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी मिस हार्डो। जाहिर है मैंने उसे चाहा था, उसके खुलूस और उसके ईसार से मुतासिर हुआ था, और चाहा तो मैंने अपने खानदान को भी था। सब कुछ चाहा था मैंने, और जब वो सब कुछ नहीं मिला तो क्या जरूरी है कि मैं तहजीब ही की याद में भटकता रहूं? तारीना हार्डो एक लम्हा खामोश रही, फिर उसने सुकूत तोड़ा। बोली, अली
और कुछ तो तुमसे नहीं कह सकती, लेकिन तहजीब की तलाश और उसे तुम तक पहुंचाना मेरी जिंदगी का भी एक अहम मसला बन चुका है और मैं इससे कभी गाफिल नहीं रहूंगी। अलबत्ता एक मशवरा तुम्हें ये जरूर दूंगी कि ग्रीन पोल मुकाबले पर है। अगर तुम साइका माइलर के साथ मिलकर इस मामले में काम करो तो मुमकिन है रास्ते में कहीं तहजीब तुमसे टकरा जाए। मैंने कहा वो एक दीगर चीज होगी, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि साइका माइलर के साथ मिलकर काम करूंगा या नहीं। तारीना बोली, अगर मुनासिब समझो तो करो। आइंशलायर की हालत बेहद काबिल रहम है। अगर तुम मिल जाते उन्हें तो शायद वो इस सारे काम के लिए तुमसे ही दरखास्त करते। मैंने तल्ख लहजे में कहा, अजीब बात ना होती तारीना। वो बोली, हाँ अजीब होती। हम लोग मुसलसल तुमसे काम लिए जा रहे हैं और तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सके, लेकिन अली बाज़ औक़ात हालात ऐसा रुख भी इख्तियार कर जाते हैं। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा। आइंशलायर की मौजूदा हालत मेरे सामने थी। काफी देर तक सोचने के बाद मैंने कहा, ये बताओ ये फाइल और फिल्म इन्हें कहाँ पर देना थी, और तुम्हारे ख्याल में आइंशलायर की बीवी और बच्चों को उन्होंने कहाँ पर रखा है? तारीना हार्डो ने कहा, इस्तांबुल में। मैंने चौंक कर हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? बोली, हाँ ये दोनों चीजें इस्तांबुल ही पहुंचाना है। ग्रीन पोल की तरफ से मिस्टर आइंशलायर को इस सिलसिले में हिदायत दी जा चुकी हैं। मैंने कहा, क्या आइंशलायर ने उनसे कोई वादा कर लिया है कि वो कब तक उन्हें ये चीजें पहुंचा देंगे? तारीना हार्डो ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ मोहलत मांगी है। मैंने कहा, ठीक है तारीना, अब इस सिलसिले में साइका माइलर को जो इत्तलात फराहम करना हो कर देना। दरअसल मैं नहीं चाहता कि साइका किसी तौर भी एहसास कमतरी का शिकार हो। मिस्टर श्लायर की मजीद हिदायत साइका ही के जरिए मुझ तक पहुंच जाएंगी। तारीना ने कहा, ओके, और मैं उठ खड़ा हुआ। तारीना हार्डो से रुखसत होकर मैं साइका के पास पहुंच गया। वो उदास उदास सी नजर आ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मुझे देर हो गई? बोली, नहीं अली, शर्मिंदा न करो, मैं किसी जवाब तलबी का हक तो नहीं रखती। आओ ऊपर खुली हवा में बैठे, उसने कहा और मैं उसके साथ चल पड़ा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।